This sentence was rest, right? So who has to make this Yes, sir. sentence? Nidhi, do you remember the accurate verb? Sir, I have to make this sentence. Yes, sir. Mini, go ahead. Uh, so this sentence is related to future continuous tense. It is a affirmative. It is a negative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is I. Thereafter, I will take the first helping verb, and the first helping verb is will. Thereafter, I will take a negative word, and negative word is not. Thereafter, I will take the second helping verb, and the second helping verb is we. Thereafter, I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is remind. Thereafter, I will put ing. Later on, I will I will take सर सब्जेक्ट तो हो गया यू. यहाँ पे फिर यू के लिए क्या होगा? आई फॉरगेट. लेटर ऑन आई विल टेक ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इज अगेन एंड अगेन. Nice. Important thing is missing, so I'm transferring the sentence to Nidhi. Mini, have I given this verb in your batch? No. You have नहीं. used it from your own mind, na? यस सर. That is good. Sir, as far as I think, spelling is wrong, sir. Remained. Sir, it is. Mind. You are right. सर Yes, sir. MINDING. Yes. Thank you. चलो आगे बढ़ने से पहले तब तक इन लोगों के लिए इसको मिनी तुम पूछ लो. नहीं, मिनी ने तो इतनी देर तक इंग्लिश बोल ली है. निधि गो अहेड. Okay, sir. I have to make this sentence. This sentence is related to future continuous tense. It is a negative sentence. Firstly, I will take the subject, and the subject is I. Thereafter, I will take the first helping verb, and the first helping verb is will. Later on, I will put the negative word, and the negative word is not. Thereafter, I will take the second helping verb, and the second helping verb is be. Later on, I will take the first form of the verb, and the first form of the verb is remind. Later on, I will put ing with first form of the verb. Thereafter, I will take the object, and the object is you. एक Sir, is it right? एक सेकेंड. Hmm. निधि, ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? Sir, कर्म, करेक्ट. कर्म किसे कहते हैं? जिस पे कर्ता का प्रभाव पड़ता है. कोई और बताएगा कर्म किसे कहते हैं? वो तो क्रिया होती है ना. कोई भी बता सकता है सर जिसको. जो काम जिस पर हो रहा होता है. क्रिया का सर. यस. हाँ. क्रिया का. करेक्ट. क्रिया का जिस पे असर पड़ता है तो ये कर्म ही होगा. निधि, गो अहेड. Okay, sir. And lastly, I will take the extension, and the extension is again and again. Finally, full stop.
Mini, speak this as it is. I will not be reminding you again and again. मैं तुम्हें बार बार याद नहीं दिलाता रहूंगा. I will not be reminding you again and again. मैं तुम्हें बार बार याद नहीं दिलाती रहूंगी. निधि दीदी. I will not be reminding you again and again. मैं तुम्हें बार बार याद नहीं दिलाती रहूंगी. चलिए दोस्तों, 3 चीजें बदलते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट. आई एम स्टार्टिंग. कुछ अच्छा सोच के प्रैक्टिकल सेंटेंस बनाना हमारी जिंदगी से जुड़े हुए, और ना भी बने तो कोई बात नहीं. ही विल नॉट बी हेल्पिंग हर अगेन एंड अगेन. वो बार बार उसकी मदद नहीं करता रहेगा. Sir, I am ready. She will not be uh, accompanying him again and again. वह उसका बार बार साथ नहीं देती रहेगी. She will not be reminding, she will not be protect him again and again. वह उसकी मदद बार बार नहीं करती रहेगी. निधि, हाँ. थोड़ा सा अपन इसको धारक बदलने जा रहे हैं. तुम अगर क्वेश्चन के लिए तैयार हो तो मैं तुमसे एक क्वेश्चन करता हूँ, तुम उसका जैसा उत्तर देना हो वैसा देना, जो मर्जी हो, यस में, नो में. फिर अपना प्रश्न किसी और से पूछना. विल रशिया बी इन्वेडिंग यूक्रेन अगेन एंड अगेन? Yes, sir. Russia will be. Sir, I forgot verb. So, say come again. Sir, come again, please. Will Russia be invading Ukraine again and again? Yes, sir. Russia will be invading Ukraine again and again. क्या रूस बार बार यूक्रेन पर हमला करता रहेगा? हाँ सर, रूस बार बार यूक्रेन पे हमला करता ही रहेगा. Mini. Will he be making dosa for you again and again? According to this English, let's see the Hindi of Roshni. Sorry. Yes, he will be making for me dosa for me again and again. क्या वह तुम्हारे लिए बार बार डोसा बनाती रहेगी? क्या हाँ, वह मेरे बार-बार लिए बार बार डोसा बनाता रहेगा. Will India be paying tribute martyrs again and again? To the martyrs. Yes, India Martyrs. will be paying Wait, tribute. wait. Okay, sir. To the martyrs. The to the martyrs. Will India be paying tribute to the martyrs again and again? Yes, India will be paying tribute to the martyrs again and again. क्या इंडिया शहीदों को श्रद्धांजलि देता रहेगा? को बार बार श्रद्धांजलि देता रहेगा? हाँ, भारत शहीदों को बार बार श्रद्धांजलि देता है. तुमने मिनी बहुत अच्छी वर्ब उठाई, सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा लिया, ऑब्जेक्ट भी बहुत अच्छा लिया, और तुमसे उच्चारण गलत हो रहा था तो हमने सुधरवा दिया. जैसे ही हमने उच्चारण किया, गूगल ने सही शब्द ले लिया, मार्टर्स. सर, मैं पहले पूछने वाली थी, फिर मैंने कहा बोलती हूँ, फिर सर खुद ही सही कर देंगे. बिल्कुल. अब तो सभी कुछ पहले दिन से बोलते आ रहे हैं, तुम रुको मत, तुम बोल दो, बाद में वो सही हो जाएगा. इस बहाने तुम्हारे मुंह से 2 बार इंग्लिश निकलेगी, तुम ज्यादा बोलोगे. मार्टर, ये शब्द कहीं लिखवाया है बेटा? नो सर. चलो एक बार हम सेम क्वेश्चन पूरा दोहरा देते हैं. रोशनी, विल इंडिया बी पेइंग ट्रिब्यूट्स
टू द मार्टर्स। निधि तुम उत्तर दे दो। Yes, India will be paying tributes to the martyrs. क्या भारत शहीदों को पुनः पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता रहेगा? हाँ, भारत शहीदों को पुनः पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता रहेगा। रोशनी, will CID be revealing cases again and again? Yes, CID will be revealing cases again and again. क्या CID केसेस को बार बार पर्दाफाश करते रहेंगे? हाँ, यस, CID बार बार इट इज नॉट वर्किंग ना सर, केसेस, केस। केसेस इज करेक्ट, बल्कि यहाँ कॉम्प्लिकेटेड केसेस रख दो। CID we revealing difficult cases again and again. Yes, CID will be revealing difficult cases again and again. क्या CID डिफिकल्ट केसेस बार बार उजागर करते रहेंगे? हाँ, CID डिफिकल्ट केसेस बार बार उजागर करते रहेंगे। सर ये केसों का पर्दाफाश करते रहेंगे, ऐसा कुछ ना? बोथ आर करेक्ट। अब मैं एक प्रैक्टिकल सेंटेंस बनाता हूँ। मिनी, विल योर दीदी बी वेकिंग यू अप every day? Yes, sir. My Didi will be waking up me. निधि, कैन यू आंसर? ये थोड़ा सा अलग है। Forgot object. Yes, my Didi will be waking up me again and again. हाँ, इसका सिद्धांत याद है कि भूल गई? दीदी एक बार और बोलो ना। Sir has given us. पहले तुम वो बोलो तब मैं बोलूँगी। नहीं, एक Come मिनट again. रुक जाओ, बता देते हैं। तुम में से किसी ने अपनी स्पीच में यूज किया था कि नहीं? सर मैंने I used it again and again, yeah. नहीं, अगेन एंड अगेन नहीं, ये वेकअप वाला पैटर्न। Yes, sir. सर सभी I ने will किया have था। to. I will have to. Sir, for my husband. By the way, he always get up early in the morning, but sometimes I will have to wake up. ऐसा कुछ सर। तो एक बार हम इनको सबको एक राउंड Wake him चलवाते up. हैं, ठीक है? चलो निधि, तुमसे शुरू करते हैं। पहले हम थोड़ा सा बता देते हैं बच्चों, ये फ्रेजल वर्ब है। यहाँ फ्रेजल स्पेलिंग तो तुम्हारी स्क्रीन पे आ गई है, फ्रेजल वर्ब। लेकिन यहाँ पे फ्रेज का मतलब टुकड़ा होता है। तो दो या दो से अधिक टुकड़ों से मिलकर बनी हुई क्रिया फ्रेजल वर्ब कहलाती है। दो या दो से अधिक टुकड़ों से मिलकर बनी हुई क्रिया फ्रेजल वर्ब कहलाती है। और अंग्रेजों के पास जब कुछ क्रियाओं की कमी पड़ जाती है, जैसे जागना के लिए क्रिया है अंग्रेजों के पास, जगाना के लिए नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो दोनों शब्दों के बीच में ऑब्जेक्ट रख देते हैं। तो फिर तो जैसे कि नहलाना, है ना? जगाना, नहलाना, तैयार करना, चोटी करना, हिलाना, नचाना, गवाना, बहुत सारे ऐसी क्रियाओं में हम बीच में प्रयोग करते हैं। अभी हम एक प्रयोग करके दिखा रहे हैं। हम निधि से शुरू कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट में कुछ भी रख देना निधि। अब निधि एक मॉम है, तो वो अपने बच्चे का नाम रख देगी, तुम लोग कोई भी रिश्तेदार का नाम रख देना।
यहाँ बीच में ऑब्जेक्ट आएगा, और ऑब्जेक्ट इस बहाने तुम्हारे ऑब्जेक्ट का भी अभ्यास हो जाएगा। ही ऑब्जेक्ट नहीं होता है, शी ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये सब सब्जेक्ट थे। तो हम निधि से पूछ रहे हैं, और आपको नाम ही रखना पड़ेगा, आप रख लोगे। निधि, टू whom do you wake up? सर, आई वेक आदि अप। करेक्ट। तुम किसको जगाती हो? सर, मैं आदि को जगाती हूँ। मिनी, टू whom do you wake up? I wake Virat up. यस। मिनी, आप किसको जगाती हो? दी, मैं विराट को जगाती हूँ। नेहा दी, टू whom do you wake up? मिनी, आई वेक पावनी अप। दी, आप किसको जगाती हो? मिनी, मैं पावनी को जगाती हूँ। डू यू वेक अप? I wake Vaidehi in up. चलो रोशनी, तुम्हारा समय बचा लेते हैं। रोशनी, टू whom do you wake up? सर, आई वेक माय सन अप। वेरी नाइस। तुम किसको जगाती हो? सर, मैं अपने बेटे को जगाती हूँ। तुम मुझसे पूछ लो। सर, टू होम डू यू वेक अप? आई वेक हिम अप। सर, आप किसको जगाते हैं? मैं उसको जगाता हूँ। कुछ सेंटेंस अगर मन में आए इससे संबंधित, अलग टेंस में, किसी भी चैप्टर में, तो व्हाट्सएप करना। कल पहली बार तुम्हारे में से कुछ लोगों ने अच्छे सेंटेंस बना के भेजे थे, मैंने चेक भी करके उसको, तो एक आध जो गलत था हमने उसको गलत कर दिया था, जो सही थे सारे सही कर दिए। पहली बार हुआ है। और निधि, ये अच्छी शुरुआत है, और सॉरी मिनी, ये अच्छी शुरुआत है। बस इसमें एक समस्या आती है कि जब और कोई नहीं करता ऐसा, तो वो बंदा भी थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है जो उत्साहित है। लेकिन तुम कमजोर मत पड़ना, तुम अपने जब भी कुछ भी आए तुम भेजते रहना, और हम इस तरह से चेक करके बताते जाएंगे। नहीं तो तुम दूसरों के चक्कर में पता चला तुम आगे बढ़ रही थी और पीछे आ गई, तो तुम बढ़ते जाना, जो भी मन में आए भेजते रहना। जैसे अभी मुझे बहुत हेल्पफुल रहेगी ये सब चीजें। एसएससी का एग्जाम है मेरा, हाँ। उसमें इंग्लिश का सारे सिनोनिम, एंटोनिम, ये सारा सिलेबस रहता है। अब बच्चों, फ्यूचर कंटिन्यूस में हम फिर से लौटेंगे, तो एक पेज दोनों तरफ का अल्टी पल्टी छोड़ दो। एवरीबॉडी गुड नाइट, शब्बा खैर, सी यू टुमारो। थैंक यू सर।